Hello my dear students of class 11. Welcome to your own channel Physics at your Taste. लाने की कोशिश मेरी है, करना आपको है और मेहनत जब हम दोनों मिलकर करेंगे तो definitely physics will be at your taste. Again I am telling you children, many of you are watching this channel but you are not subscribing this channel. Please do subscribe this channel. Your subscription is very important for me. So please, as you are my regular viewers, please do subscribe my channel. And if you are using it first time, then please do definitely first of all subscribe my channel. So the today's topic of mine is relative velocity. Actually relative velocity होती क्या है? ये मोटी भाषा में बात करें ना, बिल्कुल ठेठ देहाती भाषा में, तो relative velocity है वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू दूसरा ऑब्जेक्ट की। यदि अब दो ऑब्जेक्ट एक ही रास्ते पर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी पोजीशंस में टाइम के साथ आने वाले चेंज के डिफरेंस को हम कहते हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। दैट मींस आई मस्ट से इन इंग्लिश दैट इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1। So we are today basically focusing on relative velocity in one dimension. One dimension का मतलब मेरे दोनों object one dimension चल रहे हैं, they are not moving in two dimension. So let me consider my two objects. Object 1 moving with velocity v1. Another one is object 2 which is moving with velocity v2 in the same direction. ठीक? Now इस समय जब इन दोनों objects ने चलना शुरू किया तो उनकी टाइम t is equal to 0 पर कोई ना कोई पोजीशन तो होगी बेटा, कहीं ना कहीं से तो ऑब्जेक्ट चलता ही है। तो लेट देयर पोजीशन बी डेफिनेटेड बाय x1 0 एंड x2 0, राइट। अच्छा, थोड़ी देर बाद टाइम t के बाद उनकी पोजीशंस हो गई x1 t एंड x2 t रिस्पेक्टिवली, दोनों। ठीक है, अब मैंने यदि उन दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? हाँ, राइट, आई विल राइट देयर पोजीशन बाय position plus the distance covered by the body in time t। कैसे लिखूंगी? यदि मैं अभी यहाँ पर हूँ और थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाती हूँ तो मेरी वो पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में प्लस ये डिस्टेंस जो मैंने कवर कर दिया। इस इक्वेशन को जनरली हम जब फर्स्ट लुक में देखते हैं तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपने तीनों ही देखिए डिस्टेंस लिया हुआ है, एक्चुअली पोजीशन ली हुई है। दिस इज पोजीशन इन टाइम t, this is position in time which was in the starting, this was the distance covered by the body in time t, right? Similarly for equation 2. Now let me subtract equation 2 from equation 1, which will be x2t minus x1t is equal to x20 minus x10 plus v2 minus v1 into t. Now या फिर आप इसे कह सकते हो, इस चीज को थोड़ा सा देखो तो डिस्प्लेसमेंट, इसे मैंने अभी आपको बताया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t, this is displacement of object 2 in time t. So you will write in that case displacement of object 2 in time t minus the displacement of object 1 in time t will be equal to v2 minus v1 into t. तो relative displacement, relative मतलब आपस में, इस टाइम गैप में आपस में इनका कितना चला गया, तो relative displacement of object 2 with respect to object 1 in time t is equal to v2 minus v1 upon t. यदि इस t को मैं नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू v2 minus v1. Since this is relative displacement of object 2 with respect to object 1, then of course this will be relative velocity of object 2 with respect to object 1. यदि ये है relative displacement of object 2 with respect to object 1 तो ये होगी relative velocity of object 2 with respect to object 1. So this is equal to relative velocity of object 2 with respect to object 1. ठीक, relative velocity of 1 with respect to 2 कैसे लिखा जाएगा? v1 minus v2। देखा जाए तो फॉर्मल डिस्कशन इसका खत्म हो गया। मोटे तौर पर हर बच्चे को ध्यान रखना है कि जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो relative velocity of a with respect to b will be va minus vb. Similarly, relative velocity of b with respect to a will be vb minus va if they are traveling in the same direction. But in case if they are moving in the opposite direction, ठीक है, जैसे अब आप ही मान लो आप मुझसे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हो
और मैं आपसे कहती हूं भाई हमें तो मिलना है। यदि आप मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हो तो या तो तरीका ये है कि मैं 10 किलोमीटर चल के आपके पास आऊं, या तरीका ये है कि आप मेरे पास 10 किलोमीटर चल के आना चाहो। अब इसमें टाइम हम दोनों को अलग अलग लगेगा, लेकिन हमने क्या किया, एक कुछ शॉर्ट मामला कर लिया। हम दोनों एक दूसरे से अपोजिट चले, मैं आपकी तरफ आप मेरी तरफ, ठीक। उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ बेटा कि कुछ डिस्टेंस आपने कवर कर लिया होगा, कुछ डिस्टेंस मैंने, तो हम जो लगने वाला टाइम था उससे काफी पहले मिल लिए होंगे। ऐसी कंडीशन में हम आपसे कहते हैं when the objects are moving in the opposite direction, ठीक है, if they are approaching to each other in the from the opposite direction, ठीक। इसी चीज को आप ये कह सकते हो when they are separating from each other in the opposite direction. So I am talking about first of all this, यहां पर यदि इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, then in that case for sure आपको एक वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो for the time being let me consider v2 to be negative. So relative velocity of 2 with respect to 1 will be actually, मेरा ओरिजिनली फॉर्मूला ये कहता है, लेकिन मेरी कंडीशन ये कहती है कि ये हो जाएगा, राइट? क्लियर टू यू ऑल? फाइन। इसमें यदि कोई सेक ऑफ कन्वीनियंस में चाहता है कि मैं इसे नेगेटिव ले लूं तो कुछ नहीं होगा, फिर या ये नेगेटिव हटकेगा पॉजिटिव आ जाएगा। बट यदि एक 10 है और एक 15 है तो भी रिजल्ट या तो -25 आएगा या फिर +25। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, अनदर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे में जब आगे वाला ड्राइवर पीछे की तरफ देखेगा तो उसको आपकी तब जब दोनों सेम डायरेक्शन है तो उसे आपकी रिलेटिव गाड़ी सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई नजर आएगी, क्योंकि 10 तो आप दोनों ही आगे बढ़ गए ना, राइट? So that is known as relative velocity in one dimension. Similarly, like this, children, you have to take one to be negative. इसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है. So just you have to take care of it. यदि मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ पोजीशन और टाइम का, कि आपकी दो बॉडी है, दोनों चल रही हैं, ठीक? वन एक थोड़ी आगे खड़ी थी, एक थोड़ी पीछे खड़ी थी, ये पोजीशन, ये टाइम, ये one is moving with the speed of 5 meter per second या 10 meter per second, another is moving with the speed of, इसे चलो v1 ले लेती हूँ, इसे ले लेती हूँ v2, दोनों अपनी अपनी स्पीड से चल रही हैं, दोनों में से कोई भी एक्सेलरेशन शो नहीं कर रही है, दोनों ही क्या कर रही हैं, दोनों अपनी स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करके चल रही हैं। यदि वो स्पीड को कांस्टेंटली मेंटेन करके चलेगी और कोई भी अपनी गाड़ी को तेज नहीं करेगा तो उन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन बिल्कुल कांस्टेंट बना रहेगा, राइट? उसी तरीके से आपके पास दो पोजीशंस थी, लेकिन सडनली इसने सोचा कि लेट मी एक्सेलरेट, तो ये यदि एक्सेलरेट करेगा तो ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसा ही चलता रहेगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विल कंटिन्यू टू increase, that is if v2 is greater than v1, right? अब ऐसा तो नहीं थोड़ा है कि आगे वाला ही सोच सकता है कि मैं एक्सेलरेट करूंगा, पीछे वाले ने सडनली सोचा कि मैं एक्सेलरेट करूंगा। उस केस में यदि मेरा आगे वाला बंदा बिल्कुल अपनी कांस्टेंट स्पीड पकड़ के चलता है और मेरा पीछे वाला बंदा कहता है आई विल एक्सेलरेट, आई विल इंक्रीज माय स्पीड, देन इन दैट कंडीशन डेफिनेटली a condition will come where they are going to meet each other, और जहां ये मीट करेंगे उसके बाद इन दोनों के बीच का सेपरेशन शुरू में इनके बीच का सेपरेशन कम होगा और उसके बाद इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। सो दिस वाज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी चिल्ड्रन, वेयर यू कैन हैव कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। ये वाले तीनों ग्राफ बेसिकली आपको तब बनाने के लिए आते हैं जब आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव स्पीड, यदि दोनों बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है विदाउट इंक्रीजिंग देयर स्पीड, तो क्या होगा, पीछे वाली बॉडी ने स्पीड बढ़ाई, पीछे वाली बॉडी ने यदि स्पीड बढ़ाई होगी तो मिलना पड़ेगा, और यदि आगे वाली ने स्पीड बढ़ाई बेटा तो कभी भी मिलना नहीं हो सकता। यदि आपसे आगे चलने वाला भागता ही चला जाएगा और आप पीछे हो तो फिर आप कैसे पकड़ लोगे बेटा?
होता है जब तक आप अपने आप को एक्सेलरेट नहीं करते, राइट? So this was all about relative velocity in one dimension. If at all you face any problem, then you can put it in my inbox. I will definitely reply it within 24 hours. Please children, this is my humble request to all of you. मेहनत से पढ़ो. Physics बिना मेहनत के आ नहीं सकती है. You need to work hard for physics a lot, right? So thank you for watching my channel and be a regular viewer of it. It will help you a lot. Till the time we meet next, thank you everyone.